dynamics. This chapter is very important concept point of view. You can say JEE point of view, NEET point of view, any entrance point of view. Chapter is from mechanical physics. That is, your physics is divided into different parts: mechanical physics, thermodynamic physics, electrical physics, mathematical physics. So this part belongs to the mechanical physics. Okay, optical physics. Physics is basically divided into many parts: mechanical physics, optical physics, electrical physics, thermodynamics physics, and then quantum physics, special theory of relativity part of the physics, and electrodynamics, that is related to your charges and all. So this part belongs to the mechanical physics of your physics syllabus. Now, while understanding this chapter, you need to be very concentrated. Your concepts should be very clear while understanding or while doing the sums of mechanical physics. So before going ahead in the chapter, first I need to discuss some basics which is required for understanding rotational dynamics. रोटेशनल डायनेमिक्स को समझने के लिए हम लोगों को कुछ बेसिक कंसेप्ट्स हैं जो पहले क्लियर करना है, एंड देन हम चीजों के साथ आगे बढ़ेंगे. ओके, सो बेसिकली before going ahead with the rotational dynamics, first I would like to discuss with you people that what is motion. According to you, what is motion? Motion क्या होता है? ये बाद में आता है. Movement of any This object. is one of the type of motion. Movement of any object. Change in position. Someone is trying to give a perfect explanation, but I cannot hear you. Change Can you in please position of the object. Change in position. change in position of the object? Someone said that change in position of the object. Change in position of the object. Why, when someone said that movement of the object or other definitions, I'm not considering that. That is because movement हो रहा है या नहीं हो रहा है, that is defining your motion for sure. But don't you think it should be something that, ma'am, when I'm observing something and if it is changing the position, I should say that the object is actually in motion. मतलब वो मूवमेंट कर रहा है या नहीं कर रहा है, that is a different phenomena. वो चल रहा है कि नहीं चल रहा है, that is a different phenomena. But मुझे दिख रहा है कि उसका पोजीशन चेंज हो रहा है, so I should define it as a motion. Don't you think this should be a proper explanation? वो मूवमेंट कर रहा है कि नहीं कर रहा है वो मैं बाद में डिस्कस करूंगी, बट मुझे अगर उसका पोजीशन चेंज होता हुआ दिख रहा है तो I should say that that object is in motion. Are you understanding what I'm trying to say? कुछ समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रही हूँ? Yes. Yes. For example, let's take one example. ये बहुत ही बेसिक है, 11th स्टैंडर्ड में पढ़ा हुआ है, but still I'm considering you don't know anything and I'm going ahead with the basic. एक पर्सन है जो बस के अंदर बैठा हुआ है और एक पर्सन है जो बाहर से खड़ा है. ठीक है, ये बस जो है ये मूव हो रही है, इट इज मूविंग. ठीक है, इट इज मूविंग. नाउ व्हेन दिस बस इज मूविंग, फॉर द पर्सन हु इज इनसाइड, उसके लिए ये पर्सन, ये जो पर्सन है, ये पर्सन उसको पीछे जाते हुए दिखेगा. पीछे जाते हुए दिखेगा. Yes. Yes. इट्स वेरी ट्रू. Yes. Yes. इसका इसका जो है, इसके लिए इसका पोजीशन चेंज हो रहा है. Yes. करेक्ट है? ये जो पर्सन अंदर बैठा है Yes. उसके लिए इसका पोजीशन चेंज हो रहा है. सो अकॉर्डिंग टू दिस, कि सिंस इसका पोजीशन चेंज हो रहा है, दिस पर्टिकुलर पर्सन विथ रिस्पेक्ट टू बस वो मोशन में है.
करेक्ट है? Yes. करेक्ट है? Yes. पर वहीं पर अगर एक पर्सन यहाँ खड़ा है और वो इस पर्सन को देख रहा है, रेस्ट पे, वो रेस्ट पे, रेस्ट पे, तो ये मुझे Rest किस पे दिखेगा? रेस्ट, रेस्ट, आर यू अंडरस्टैंडिंग? यस, क्लियर हो रहा है? yes, So I can say that motion is a relative concept. That's very true. Yes, ma'am. यस, Motion is a yes, relative concept. relative concept, उसका डायरेक्शन हम कहाँ से देख रहे हैं बहुत ज्यादा मैटर करता है. That is okay. Is everyone Yes. okay? Yes. जो लोग Yes, 11th clear. में नहीं थे उनको ये कंसेप्ट क्लियर हुआ कि मैं मोशन को रिलेटिव क्यों बोल रही हूँ? यस, Why I'm saying motion Yes, as ma'am. relative? Yes, ma'am. हम कहाँ से देख रहे हैं मैटर करता है. हम बस में बैठे हैं, जो पर्सन बाहर खड़ा है वो मुझे पीछे जाते, अगर मेरी बस आगे जा रही है वो मुझे पीछे जाते हुए दिख रहा है, मतलब मेरे बस के हिसाब से वो पीछे की तरफ मूव हो रहा है. हाँ या ना? yes, Is it true or yes, not? Yes. तो Yes. फॉर मी जो पर्सन बाहर खड़ा है उसका पोजीशन चेंज हो रहा है विथ रिस्पेक्ट टू टाइम. मतलब वो पर्सन मोशन में मेरे लिए, जब मैं बस के अंदर हूँ और मेरी बस आगे की तरफ मूव हो रही है, तो मेरे लिए दैट पर्सन इज मूविंग इन द अपोजिट डायरेक्शन. आर यू अंडरस्टैंडिंग? Are you yes, understanding what I'm trying? Yes. Is everyone clear what I'm saying, trying to say? yes, यस मैम, ठीक है. Now ये तो आपकी के बारे में डिस्कशन की मोशन एग्जैक्टली होता क्या है. दैट इज चेंज इन पोजीशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट. अगर ऑब्जेक्ट का पोजीशन मुझे चेंज होता हुआ दिख रहा है मतलब मेरे लिए ऑब्जेक्ट का मोशन हो रहा है. मतलब अगर हम ये बात बोलते हैं, अगर हम ट्रेन में बैठे हैं और हम बोलते हैं कि कल्याण आ रहा है, तो ये स्टेटमेंट रॉन्ग नहीं है. इज इट ट्रू और नॉट? Yes. yes, Yes. true है, कल्याण आ रहा है, दैट इज वेरी Yes. ट्रू. कल्याण आ रहा है क्योंकि मैं ट्रेन के रिस्पेक्ट में देख रही हूँ. अब मैम मुझे तो पता है ना कि वो नहीं चल रहा है, मुझे पता है, वो तो मैं देख रहा हूँ, मेरी बस आगे की तरफ जा रही है. इस चीज को समझने के लिए आप एक बहुत अच्छा एक्सपेरिमेंट कंसिडर कर सकते हो. इट्स एन इमेजिनरी एक्सपेरिमेंट कि अगर आपको एक बॉक्स में बंद कर दिया जाए, ओके, इफ यू आर पुट इनसाइड अ बॉक्स और बॉक्स को पूरी तरीके से बंद कर दिया जाए, ठीक है, आपको नहीं पता कि आपका बॉक्स मूव हो रहा है या नहीं हो रहा है, वॉट एवर मे बी द कंडीशन, ठीक है, बट आपको बाहर की चीज पीछे की तरफ जाते हुए दिखाई दे रही है, तो आप ये डिसाइड नहीं कर सकते कि आप आगे की तरफ जा रहे हो या बाहर की चीज पीछे की तरफ मूव कर रही है. हाँ या ना? Yes. करेक्ट है या नहीं? yes, सो दिस इज हाउ अकॉर्डिंग टू यू आपको बाहर की चीज पीछे की तरफ जाते हुए दिखाई दे रही है. मतलब ये क्लियर है, आपको खुद का मोशन के बारे में कुछ नहीं पता, पर आपको ये पता चल रहा है कि बाहर की चीज पीछे मूव हो रही है, आप मोशन करती हुई दिख रही है. इज इट क्लियर और नॉट? Yes. Yes, समझ में ma'am. आया? Yes. समटाइम्स आप ट्रेन में बैठे होते हो, देयर इज वन ट्रेन हियर, देयर इज वन ट्रेन हियर, आप कंफ्यूज हो जाते हो. जब आप यहाँ बैठे हो आपको अचानक से कुछ मूवमेंट दिखाई देता है, आप ये कंफ्यूज हो जाते हो कि ये सामने वाली ट्रेन चल रही है कि मेरी ट्रेन चल रही है. जब ये स्टार्टिंग में ये मोस्टली होता है, आप ट्रेन में Yes. बैठे हो, आप सामने Yes. खिड़की से देख रहे हो, आप कंफ्यूज होते हो कि मेरी, जब आपको फील नहीं होता, बिल्कुल एक बार फील होना शुरू हो गया, ट्रेन एक्सेलरेट हो रही है, तब आपको फील होना शुरू हो गया तो बात अलग है. अगर 2 मिनट के लिए आप बाहर की तरफ देख तो आपको ये कंडीशन नहीं है, आप feel होगा कि यार मेरी ट्रेन मूव होना स्टार्ट हुई है कि सामने वाली ट्रेन मूव होना स्टार्ट हुई. वेट वेट. Is it okay now? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Okay. So are you clear what I tried to say? I said you are in one train. एक सामने भी ट्रेन खड़ी है, दोनों रेस्ट पे है, अचानक से किसी एक ट्रेन ने चलना स्टार्ट किया. आपका ये कंफ्यूजन होता है कि मेरी ट्रेन ने चलना स्टार्ट किया या सामने वाली ट्रेन ने चलना स्टार्ट किया. हाँ या ना? yes, Yes. क्लियर है? सो मोशन इज समथिंग, आई से मोशन इज समथिंग जब पोजीशन चेंज हो. मेरे लिए अगर वो पोजीशन चेंज होता हुआ दिख रहा है मतलब उस ऑब्जेक्ट का मोशन हो रहा है. आर यू क्लियर व्हाट आई एम ट्राइंग टू से? Yes. बोलो. Yes. मैम बोलो. दोनों ट्रेन अगर सेम
स्पीड से चलेगा तो फिर दोनों एक्चुअल में मोशन में है, बट हमको लगेगा कि रेस्ट पे। एग्जैक्टली, दैट इज व्हाट आई सेड। तब मुझे कोई पोजीशन चेंज होता हुआ नहीं दिखेगा, और जब मुझे पोजीशन चेंज होता हुआ नहीं दिखेगा तो मैं बोलूंगी मोशन नहीं हो रहा है। सो दैट इज व्हाट आई सेड कि मोशन इज रिलेटिव। आप कहाँ से देख रहे हो बहुत ज्यादा मैटर करता है। समझ में आया? समझो? बड़े से Yes. मतलब if I want to, that is very important that if I want to say that something is in motion, it should change the position. उसका मूवमेंट हो रहा है, उसका मूवमेंट नहीं हो रहा है, ये तो बात का मैटर है। मुझे चेंज होता हुआ दिखना चाहिए। क्लियर? क्लियर हुआ? Yes. 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 Now there can be different kind of motions. अलग अलग टाइप होते हैं मोशन के। जैसे फिजिक्स के मैंने आपको 4-5 टाइप बताए, मैकेनिकल फिजिक्स, ऑप्टिकल फिजिक्स, इलेक्ट्रिकल फिजिक्स, फिर उसके बाद क्वांटम मैकेनिक्स, फिर उसके बाद स्पेशल थियरी ऑफ रिलेटिविटी। वैसे मोशन के भी अलग अलग टाइप होते हैं, और जब आप अलग अलग सिस्टम में एंटर करते हो ना, वहां पे आपको पूरा एक अलग वर्ल्ड देखने के लिए मिलता है। सो मोशन कितने टाइप का होता है? लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड दैट। One dimensional होता है, First, two dimensional. yes. So first, let us consider rectilinear motion. The first type, that is rectilinear One motion. Straight line. Rectilinear motion का मतलब होता है Straight straight line line motion. Motion in straight line. One dimension motion. ये पढ़ना बहुत इजी होता है। Straight line motion is very easy to understand. For example, एक चीज सीधा 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 चलती जा रही है या अपोजिट डायरेक्शन में चलती जा रही है, this kind of motion is a rectilinear motion Rectilinear or a motion. straight line motion. Clear हुआ? Yes. समझा rectilinear motion क्या है? It's Yes. straight line motion. ठीक है? Second type is circular motion. Something called as circular motion. Circular motion का क्या है? Consider the revolution of the Objects planets move around the circumference sun. of circle. ये पूरा एक ऑब्जेक्ट जो है, ये पूरा ऑब्जेक्ट किसी एक पॉइंट के अक्रॉस सर्कल में रिवॉल्व करेगा। रिवॉल्यूशन। Yes. रिवॉल्यूशन इज अ काइंड ऑफ Circular motion. Circular motion. ठीक है? नेक्स्ट इज थर्ड टाइप, रोटेशनल मोशन। ये दोनों थोड़ा कनेक्ट होते हैं एक दूसरे से। कैसे वो समझेंगे आगे। Means rotation अब- अपने एक्सिस पे होता है. एग्जैक्टली। रिवॉल्यूशन क्या क्या, प्लीज ध्यान से सुनो। सर्कुलर मोशन में जब मैंने एग्जांपल रिवॉल्यूशन का लिया, व्हेन आई टुक एन एग्जांपल ऑफ रिवॉल्यूशन, पूरा एक प्लैनेट, पूरी एक बॉडी जो है किसी एक पॉइंट के क्रॉस गोल गोल घूम रही है। दिस इज सर्कुलर मोशन व्हिच इज रिवॉल्यूशन। बट व्हेन आई टॉक अबाउट रोटेशन, प्लीज ध्यान से सुनो, व्हेन आई टॉक अबाउट रोटेशन, एग्जांपल इज स्पिनिंग ऑफ योर प्लैनेट्स। जो प्लैनेट्स जब बॉडी Yes. अपनी Yes. एक बॉडी, ये आपने प्लैनेट लिया, कोई भी एक प्लैनेट है, ये प्लैनेट अपने ही एक इमेजिनरी एक्सिस के क्रॉस गोल गोल Rotate घूमता है, करता है। जिसकी वजह से आपका Yes. दिन और रात होता है। Yes. Yes. दिस इज रोटेशनल Yes. मोशन। Yes. रिवॉल्यूशन और रोटेशन में डिफरेंस क्लियर हो रहा है? रिवॉल्यूशन इज होल बॉडी इज रोटेटिंग अराउंड अ कॉमन पॉइंट। Yes. किसी एक कॉमन पॉइंट के क्रॉस Yes. पूरी बॉडी ऐसा गोल गोल घूम रही है, जिससे आपका 1 साल कवर होता है, 1 ईयर। समझ में आ रहा है? Yes. समझा व्हाट आई सेड? Yes. Yes ma'am. or no? Yes. Yes. एंड रोटेशनल मोशन, ये इसमें क्या होता है, बॉडी के सारे पार्टिकल्स अपनी ही बॉडी के अक्रॉस जाते हुए एक इमेजिनरी एक्सिस के अक्रॉस गोल गोल घूमता है। गोल गोल घूमते. Yes. इज इट क्लियर? Yes. Yes. सबको रेक्टिलिनियर समझा? Yes. सबको रेक्टिलिनियर समझा? Yes. कोई ऐसा है जिसको रेक्टिलिनियर नहीं समझा? से yes or no? Pihu, समझ में आ रहा है? What I said? Yes, ma'am. Yes. Okay. Are you clear with revolution? Means Are you clear with rotation. revolution? Whole body is moving around. Yes. फिर से ओके। रोटेशनल मोशन में बॉडी अपने ही एक्सिस के अक्रॉस, बॉडी अपने ही बॉडी में पास होते हुए एक इमेजिनरी एक्सिस के अक्रॉस गोल गोल घूमता है।
Are you understanding? समझ में आ रहा है what I said? Let's take one Yes, ma'am. example to understand. Let's take one example. Can you see this object? Yes. दिख रहा है? Yes. Yes. दिख रहा है? जब रोटेशन ऐसा हो रहा है, can you see this? Yes, miss. देखा? Yes, sir. Revolution हो रहा है. This is revolution. 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 पूरी बॉडी घूम रही है, पूरी बॉडी Yes. एक पॉइंट के अक्रॉस घूम रही है आपके प्लैनेट्स की तरह. ठीक है? Yes. Now just Yes. look at this. Rotation है ये. Yes. अब एक अगर मैं यहाँ पर सेंटर कंसिडर करूं, इस सेंटर के अक्रॉस पूरी बॉडी रोटेट हो रही है. करेक्ट है? Miss, circumference में जो Yes. part Yes, है, ma'am. करेंगे ना? Extreme point rotate नहीं करेगा. क्या बोला शुभम? फिर से बोल. नहीं, जो circumference में जो जब रोटेट होती है तो circumference में जो particles को revolution करेंगे ना? हाँ, करेक्ट है. Yes. ठीक है. So everyone is clear with Extreme revolution and particles rotation? stationary रहेगा ना? Yes, ma'am. Yes. Extreme Yes, sir. particles stationary रहेगा ना? Axis पे जो Extreme particles नहीं रहेगा. Extreme particles नहीं रहेगा. Axis पे जो lie जो करते हैं वो. एक्सिस पे, हाँ, जो एक्सिस Yes. पे रहेंगे वो रेस्ट पे रहेंगे. Yes. जो इसी पॉइंट पे बैठा हुआ है, जिस पॉइंट के अक्रॉस हम देख रहे हैं, ये पॉइंट पे देखो, इसी पॉइंट के, जस्ट लुक एट द डायग्राम. लेट मी मैग्नीफाई इट सो दैट यू कैन अंडरस्टैंड. पहले ये बेसिक फिनोमिना जरा अच्छे से समझ के लो. हमने एक्सिस इसी पॉइंट के अक्रॉस कंसीडर किया है. Yes. करेक्ट है? बाकी के पार्टिकल्स इसी पॉइंट के अक्रॉस गोल गोल घूम रहे हैं. ये पार्टिकल्स किसके अक्रॉस गोल गोल घूमेंगे? इसी के नहीं थ्रू तो घूमेंगे. एक्सिस जा रहा है. Yes. तो ये रेस्ट पे दिखेगा, ये पॉइंट पूरा रेस्ट पे दिखेगा. ये हम प्रूव भी करेंगे, डोंट वरी, वी आर गोइंग टू प्रूव इट. हम लोग आगे जाते जाते रोटेशनल में ये चीज प्रूव भी करने वाले हैं कि एक्सिस पे देयर इज नो रोटेशन. जिस पॉइंट को हम एक्सिस कंसीडर कर रहे हैं उस पॉइंट के पार्टिकल्स बिल्कुल भी रोटेट नहीं करते, क्योंकि वही एक्सिस होते हैं. ये किसके आजू बाजू? रोटेशन हमने क्या बोला? रोटेशन हमने बोला कि एक इमेजिनरी एक्सिस कंसीडर करना है, उसी के आजू बाजू सारे पार्टिकल्स जो है गोल गोल घूमते हैं. ये मेरा प्लैनेट है, ये मेरे प्लैनेट का इमेजिनरी एक्सिस है. इमेजिनरी क्यों बोल रही हूँ? क्योंकि सच में ऐसा कोई एक्सिस नहीं होता. आई एम कंसिडरिंग इट. Yes. ये इमेजिनरी एक्सिस है, दिस इज माय इमेजिनरी एक्सिस, और इसी के आजू बाजू सारे पार्टिकल घूम रहे हैं. अब जो पार्टिकल इसी इमेजिनरी एक्सिस पे बैठे हुए हैं, जो पार्टिकल ये किसके आजू बाजू घूमेंगे? सो दे विल बी एट रेस्ट. Rest. समझ में आ रहा है? Yes. Yes. Prove it. We are going to prove it. हम इसको मैथमेटिकली प्रूव करेंगे. Is it clear everyone? तो मैम जो Yes. एक्सिस पे उनके लिए दिन रात नहीं होता. क्या हुआ बेटा? फिर से बोलो. मैम आपने बोला Take जब note here. प्लैनेट रोटेट करते हैं तो फिर डे नाइट होता है. तो जो Yes. जब एक्सिस पे जो है वो कि उनके लिए नहीं होता. That's true. That's very true. Axis. ये वाला सेक्शन इसी वजह से तो डे नाइट एक्सपीरियंस नहीं करता. It's very true. ओके, ठीक है. ये पार्ट क्लियर. सी, हमारा अर्थ प्रॉपरली इस पॉइंट पे नहीं है. इट इज क्वाइट टिल्टेड, थोड़ा टिल्टेड है. Yes. ओके, Yes. सो वो सारे फिनोमिना भी कहीं ना कहीं बहुत मैटर करता है जब आप डे नाइट के बारे में बात करते हो. बट स्टिल ये जो 2 पॉइंट्स होते हैं ना, ये 2 पॉइंट्स बहुत कांस्टेंट होते हैं. यहाँ पर आपको बहुत ज्यादा मतलब डे नाइट ऑब्जर्व करने के लिए नहीं मिलता है. यू कैन सर्च इट ऑन गूगल, यू विल फाइंड आउट. ठीक है. व्हाई दिस प्लेसेस आर कोल्ड? व्हाई दिस प्लेसेस आर कोल्ड? ये कोल्ड क्यों है? ठंडे क्यों पड़े हुए हैं? Sunlight नहीं जाता है उधर. सनलाइट ही नहीं जाता है उनके properly पास. नहीं जाता. Yes. एग्जैक्टली, सनलाइट नहीं जाता, एकदम डार्क प्लेसेस रहते हैं ये. Yes. That is only the reason. Yes. ठीक है, let it be. I'm not going into that. That is somewhat a different region of physics. But are you clear with what is rotational motion? Yes. Revolution और Yes. rotation में difference clear हो रहा है. Yes. Revolution में एक्सिस बॉडी के बाहर होता है. कोई भी एक कॉमन पॉइंट बॉडी के बाहर होता है जिसके आजू बाजू पूरा बॉडी रोटेट करता है. और रोटेशन में एक्सिस बॉडी के अंदर है और उसी एक्सिस के अक्रॉस बॉडी के सारे पार्टिकल्स गोल गोल घूमते हैं. Is everyone Yes. clear till this much? Yes. Yes. Next motion is oscillatory motion. इसके बारे में भी हम पढ़ेंगे. Oscillatory motion is to and fro.
To and fro. ऐसा To and fro. Yes. एक मीन पॉइंट के Yes. अक्रॉस बॉडी यहाँ जाएगी, फिर यहाँ से यहाँ आएगी, फिर यहाँ जाएगी, फिर यहाँ से यहाँ आएगी। Movement of butterfly. या जैसे आपका स्प्रिंग होता है या पेंडुलम कंसीडर Pendulum, करो, पेंडुलम इज pendulum. बेस्ट एग्जांपल। दिस इज ऑसिलेटरी मोशन। Yes. आर यू क्लियर विद द टाइप्स ऑफ मोशन? Yes, ma'am. Yes, ma'am. ma'am. So, before moving ahead with the rotational dynamics, that is rotational motion, first I will discuss some basics about this. क्योंकि ये ही यहाँ पर कनेक्ट होने वाला है। हम ये समझ जाएंगे तो हमको ये समझना थोड़ा इजी हो जाएगा। I am not going to discuss about linear motion. I am not going to discuss about oscillation in this chapter. First, I'll go ahead with the circular motion. Circular motions के थोड़े basics करेंगे, and then we will jump to rotational motion. समझ में आया क्या करने वाले हैं? Yes. ठीक है। So let's move ahead with the basic concepts of circular motion. यहाँ पर मैं ऐसी चीजें पढ़ा रही हूँ जो सबके लिए नई है, तो ऐसा कुछ भी नहीं है कि कुछ पुराने जगह से कुछ कनेक्ट हो रहा है। एवरीथिंग इज न्यू। सो अगर आपको नहीं समझ रहा है, ओपन योरसेल्फ एंड टॉक टू मी। हम लोग ये चैप्टर बहुत स्लोली और बहुत आराम से लेकर जाने वाले हैं। सो एंड बहुत सारे सम सॉल्व करने वाले हैं। यहाँ पर मैं पूरा चैप्टर खत्म होने के बाद सम्स नहीं करवाऊंगी। आफ्टर एवरी टॉपिक आई एम गोइंग टू हैव एटलीस्ट 5 to 10 सम्स एंड देन मैं आगे बढ़ूंगी। सो दैट हम लोग का सम्स इस चैप्टर पे सम सॉल्व करने की कैपेसिटी और स्ट्रेटेजी दोनों इंप्रूव होती चली जाए। आर यू क्लियर व्हाट आई एम ट्राइंग टू से? समझ में आया? Yes, ma'am. समझ में क्या Yes, हुआ? ma'am. नोट्स पीडीएफ में क्या हुआ? इसका भी Someone नोट्स said पीडीएफ में आएगा ना? यस यस, इसका भी नोट्स मैं जो भी चैप्टर्स पढ़ाऊंगी वो सारे नोट्स मैं पीडीएफ फॉर्म में भेजने वाली हूँ, आपको कंप्लीट करना है। ठीक है, यहाँ पर मैं सिर्फ पढ़ाऊंगी। आई एम नॉट गोइंग टू टेल यू टू राइट समथिंग। मैं ऐसा कुछ नहीं करने वाली। ठीक है, ठीक है यहाँ पे। बट हाँ, ऑलवेज बी रेडी विथ योर नोटबुक एंड अ पेन, क्योंकि मैं क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए दूंगी और वो क्वेश्चंस मुझे आपके नोट्स में चाहिए किए हुए। तो वो क्वेश्चंस आपके पीडीएफ में नहीं आएगा, वो मैं डायरेक्टली यहीं पे डिस्कस करने वाली हूँ। तो वो आप रेडी रखना कि ये क्वेश्चंस मेरे नोट्स में होने चाहिए। ठीक है, सो लेट्स मूव अहेड विद द सर्कुलर मोशन एंड द फर्स्ट टॉपिक दैट आई एम गोइंग टू डिस्कस इन सर्कुलर मोशन। दिस इज, अभी तक मैं चैप्टर के अंदर एंटर नहीं कर रही हूँ। अभी आई एम गोइंग अहेड विद द बेसिक्स व्हिच आई कैन कनेक्ट विद द थिंग्स व्हेन वी आर गोइंग टू एंटर इनटू द रोटेशनल डायनामिक्स। रियल में जब रोटेशनल डायनामिक्स में एंटर करेंगे वहां पर हमको इन सब चीजों की जरूरत पड़ने वाली है। द फर्स्ट टॉपिक that we are going to discuss is angular displacement. मैं थोड़ा सा लीनियर से कनेक्ट होते हुए आप लोगों को लेकर चलूंगी, सो दैट लीनियर मोशन लोगों के लिए समझना इजी होता है। तो आप लीनियर से एंगुलर थोड़ा रिलेट करते जाओगे तो आपको कंसेप्चुअली समझ में आएगा। डिस्प्लेसमेंट का मतलब तो हमको पता है, Shortest distance between 2 points. Shortest distance between 2 points. शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन 2 points, 2 right? points. Points. Yes. Yes. When I talk about this, समझो this is 3 meter, so my displacement is actually 3 meters. 3 meters. यहाँ से यहाँ गई और यहाँ से रिटर्न बैक आई। समझो मैं 1.5 पे रिटर्न आई हूँ, पूरा टोटल 3 का है। Now Final what will be the position. displacement? 1.5. 1.5. Displacement will be 1.5. 1.5. क्योंकि Yes. डिस्प्लेसमेंट का मतलब होता है कि मिनिमम डिस्टेंस आपका स्टार्टिंग से एंडिंग के बीच में जो मिनिमम डिस्टेंस है वो कितना है। फिर से समझो, मैं यहाँ से यहाँ गई 3, बट मैं यहाँ से बैक डायरेक्शन में, अपोजिट डायरेक्शन में मैं वापस रिटर्न बैक हो रही हूँ। आई एम रिटर्निंग बैक। ठीक है, और डिस्प्लेसमेंट का मतलब होता है मिनिमम डिस्टेंस बिटवीन द स्टार्टिंग पॉइंट एंड एंडिंग पॉइंट। स्टार्टिंग पॉइंट और एंडिंग पॉइंट के बीच का मिनिमम डिस्टेंस कितना है। यहाँ पे स्टार्ट यहाँ से कर रही हूँ, यहाँ पर गई और रिटर्न बैक आई, तो स्टार्टिंग और एंडिंग ये पॉइंट है। सो मेरा डिस्प्लेसमेंट कितने का होगा? हाउ मच विल बी द 1.5 डिस्प्लेसमेंट? meter. 1.5 meter. सबको ये क्लियर है? Yes. Everybody is clear? Yes. Yes, ma'am. Now let us consider, now ये हो गया हमारा लीनियर मोशन के बारे में। ये लीनियर मोशन है, देखो
इट इज मूविंग इन स्ट्रेट लाइन। ये स्ट्रेट लाइन Straight मोशन line. का एक्सप्लेनेशन हो Yes. गया। Directed नाउ in लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड इन द टर्म्स ऑफ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। अब ये एंगुलर डिस्प्लेसमेंट के बारे में जरा कंसीडर, कुछ चीजें कंसीडर करते हैं एंड देन आगे बढ़ते हैं। लेट अस कंसीडर अ पार्टिकल which is moving along the circumference of a circle। एक पार्टिकल है जो सर्कल के सर्कमफेरेंस पे मूव कर रहा है, और मैं कंसीडर कर रही हूँ कि वो पार्टिकल जो है वो पार्टिकल एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट में कर रहा है। दिस इज एंटी क्लॉकवाइज। एंटी क्लॉकवाइज और क्लॉकवाइज क्या होता है? क्लॉकवाइज मतलब जिस डायरेक्शन में आपका क्लॉक घूमता है। clock घूमता फॉर है। एग्जाम्पल ये मेरा एक क्लॉक है, ठीक है, दिस इज 12, 1 2 3 4 5 6। तो मेरा क्लॉक को मैं यहाँ से ऑब्जर्व करना चालू करूंगी। मेरा क्लॉक पहले कहाँ जाएगा? 1 पे, फिर 2 पे, फिर 3 पे। ये डायरेक्शन को हम बोलते हैं क्लॉकवाइज। समझा? क्लियर हुआ? Yes. Yes. और इसके अपोजिट डायरेक्शन को, इसके अपोजिट डायरेक्शन को मतलब इसके उल्टे डायरेक्शन को हम एंटी क्लॉकवाइज बोलते हैं। Anti-clockwise. समझा सबको? Yes. समझा Yes. एंटी क्लॉकवाइज Yes. डायरेक्शन क्या है? So I am considering my particle is moving in a circle। ध्यान से सुनो। I am considering I am having a particle which is moving along the circumference of a circle। Circumference means ये वाला part। Circumference of a circle में move हो रहा है in the anti-clockwise direction। Is it clear till this much? Yes. 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 ठीक है? Now I am drawing a radius vector। रेडियस वेक्टर वो वेक्टर होता है जो पार्टिकल के पोजीशन को रिप्रेजेंट करता है। ये मेरा रेडियस वेक्टर है, Yes. माय रेडियस वेक्टर। ये मेरे पार्टिकल के पोजीशन को रिप्रेजेंट करेगा। आर यू क्लियर टिल दिस मच? Yes. Yes. सो फिर से रिपीट कर रही हूँ। आई एम हैविंग अ पार्टिकल which is moving on a circumference of a circle in the anti-clockwise direction and I am drawing a radius vector। वो रेडियस वेक्टर जो है मेरे पार्टिकल के पोजीशन को रिप्रेजेंट करता है। इज इट ओके टिल दिस मच? Yes, ma'am. ओके। रेडियस वेक्टर को इसीलिए, सिंस वो पोजीशन को रिप्रेजेंट करता है, इसीलिए रेडियस वेक्टर को पोजीशन वेक्टर के नाम से भी जाना जाता है। इट इज ऑल्सो नेम बाय Yes. पोजीशन वेक्टर। क्लियर? Yes, ma'am. Yes. ठीक है? Yes, ma'am. Yes, ma'am. नाउ जैसे जैसे टाइम बीतेगा, अगर मेरा पार्टिकल सर्कुलर मोशन परफॉर्म कर रहा है तो मेरा पोजीशन वेक्टर जो है वो टाइम के साथ उसका डायरेक्शन जो है वो चेंज होता Change जाएगा। होगा। मानते हो? Yes. Yes. क्योंकि पहले पार्टिकल यहाँ पे है, पहले पार्टिकल का पोजीशन यहाँ पे है, अब मेरा पार्टिकल का पोजीशन यहाँ पे आ गया। तो रेडियस वेक्टर या पोजीशन वेक्टर होता क्या है? रेडियस वेक्टर तो वही वेक्टर है जो मेरे पार्टिकल के पोजीशन के बारे में मुझे बताए। अगर पोजीशन चेंज हो रहा है तो मेरे रेडियस वेक्टर का डायरेक्शन भी क्या होगा? इट विल आल्सो Change मूव होगा। इन द पोजीशन। Change होगा। आर यू Yes. क्लियर? समझा? Yes. 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 तो लेट्स से इस सेंटर को मैं बोलती हूँ O, ओके, और मेरा पार्टिकल इनिशियली जिस पॉइंट पे भी है, लेट्स से आई एम सेइंग दैट एज, ठीक है? इज इट ओके टिल दिस मच? Yes. सबको ये क्लियर है? Yes. ठीक है। नाउ फॉर इम्प्रूविंग द थिंग्स मैं एक काम करती हूँ। यहाँ तक सबको क्लियर हुआ व्हाट इज रेडियस वेक्टर और इट इज आल्सो नोन एज पोजीशन वेक्टर? Position vector. Yes. कंडीशंस क्या क्या लिया समझा? ऑब्जेक्ट इज Yes. मूविंग ऑन अ सर्कमफेरेंस ऑफ अ सर्कल। Circumference of a circle. सेकंड कंडीशन क्या लिया? Anti-clockwise. पे घूम रहा है। Anti-clockwise. ये बात भी क्लियर हुई कि हमारा जो रेडियस वेक्टर है उसको हम पोजीशन वेक्टर के नाम से भी बोल सकते हैं। Yes. Yes. ठीक है? रेडियस वेक्टर को हम पोजीशन वेक्टर पे भी के नाम से भी जान सकते हैं, बट आपका रेडियस वेक्टर को पोजीशन वेक्टर तभी बोल सकते हो जब, प्लीज एवरीवन, आप रेडियस वेक्टर को पोजीशन वेक्टर तभी बोल सकते हो जब आप सेंटर को ओरिजिन कंसीडर करो।
you should consider the center as the origin. यहीं से बातें हो रही है. Yes, miss. Yes. Yes. Yes, miss. So this is the condition कि position radius vector is known as position vector जब मैं मेरे सेंटर को ही origin consider करूं. अगर मैं origin change कर रही हूँ तो मैं ये फिनोमिना नहीं लगा सकती. क्यों नहीं लगा सकती वो हम आगे डिस्कस करेंगे. बट फिलहाल this condition is clear. Yes. 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 ओके सो हमने ये 3 कंसिडर किए हैं. जरा अब इसको थोड़ा सा रिजॉल्व करने के लिए थोड़ा सा मैं डायग्राम में चेंजेस कर रही हूँ. दिस इज माय सेंटर ओ. मैं मेरे पार्टिकल का पोजीशन यहाँ पे रखती हूँ स्टार्टिंग में. This is O, this is A. This is my radius vector. Clear? ये मेरा पार्टिकल का इनिशियल पोजीशन है. मैं वहां से वो जो पहला डायग्राम था मैं वो भी कंसीडर कर सकती थी, बट जस्ट फॉर द बेसिक पार्ट मैंने सिर्फ डायरेक्शन थोड़ा सा अलग ले लिया. यहाँ से लेकर भी मैं आपको वो चीजें एक्सप्लेन कर सकती हूँ, कुछ डिफरेंस नहीं होने वाला है. ठीक है. अब यहाँ से मेरा पार्टिकल गया बी पोजीशन पे. ठीक है. इनिशियली इट वाज at time t is equals to 0, particle is at A position. This is initial position. At time t equals to 0. 0. और at time t is equals to t मेरा फाइनल पोजीशन है, मतलब एंडिंग पोजीशन है B. ठीक है. Yes. Is it clear? Yes. R is Radius vector. radius of Position vector. radius vector और radius of a circle. Circle. Yes. ठीक है. This is a arc. This is a arc which I am representing as S. ठीक है. So S is length of arc AB. ठीक है. Is it clear? मेरे Yes. ऑब्जेक्ट यहाँ से यहाँ मूव हो रहा है. एक एंगल से एक एंगल चेंजेस हो रहा है. There is a Yes. theta angle. Yes. Triangle. Yes. Now let's try to understand कि if I am taking theta in radian, आपने इसके बारे में मैथमेटिक्स में कुछ पढ़ा है. क्या पढ़ा है? What you have studied? S equal to R What you theta. have studied? S equal to R theta. So थीटा जो होता है बच्चों, दिस थीटा, ये ऑब्जर्व किया गया है कि ये जो थीटा होता है ये होता है लेंथ by ऑफ एन R. आर्क, दैट इज आर्क लेंथ अपॉन रेडियस. Yes. Yes. ठीक है. Yes. दिस मैथमेटिकली ऑब्जर्व थिंग बच्चों, कुछ नया नहीं बताया है मैंने. ये जो थीटा होता है, ये जो हमारा थीटा है, ये सिंपली होता है, ये ऑब्जर्व किया गया है कि अगर मुझे थीटा की वैल्यू चाहिए इन रेडियन, तो आई एम टॉकिंग इन रेडियन. मुझे पता है ना थीटा अलग अलग एंगल्स में मेजर होता है. इट इज डिग्री, Yes, रेडियन ma'am. Yes, Yes. ma'am. Yes. होता है. तो जो आपका थीटा इन रेडियन होता है वो होता है आर्क लेंथ, जो आपका लेंथ ऑफ द आर्क है अपॉन रेडियस ऑफ द सर्कल. अभी आर्क लेंथ को हमने क्या रिप्रेजेंट किया? व्हाट S. वी हैव रिप्रेजेंटेड एस Yes. एंड रेडियस. Yes. R. R. So here, therefore, S is equals to R S is theta. equals to Theta. R theta. ठीक है? Clear? Yes. Yes. So, if you want to talk about the instantaneous displacement, now here this theta is your angular displacement. आपका जो theta है यहाँ पे वो angular displacement है.
अगर आप इंस्टेंटेनियस डिस्प्लेसमेंट के साथ जाओ, इफ यू गो अहेड विद द इंस्टेंटेनियस डिस्प्लेसमेंट, इंस्टेंटेनियस एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, इंस्टेंटेनियस एंगुलर डिस्प्लेसमेंट का मतलब क्या होता है? वेरी स्मॉल डिस्प्लेसमेंट, बहुत एकदम स्मॉल टाइम के लिए हम लोग डिस्प्लेसमेंट देख रहे हैं। इंस्टेंटेनियस मतलब इंस्टेंटली देखने वाला। When time is very very small, time interval is tending to zero, मतलब मेरा जो टाइम इंटरवल है वो बहुत छोटा है बट जीरो नहीं है, इट इज टेंडिंग टू जीरो, मतलब मैं बहुत छोटे टाइम के लिए डिस्प्लेसमेंट देख रही हूँ। समझो बच्चों, इंस्टेंटेनियस का मतलब होता है बहुत छोटे टाइम के लिए देखना। मैम छोटा टाइम मतलब कितना छोटा टाइम? इट इज वेरी वेरी स्मॉल टाइम इंटरवल, बहुत ही छोटा टाइम इंटरवल, बट इतना छोटा नहीं कि जीरो हो जाए। Are you understanding what I'm trying to say? It can be 0.00001, Yes. but it's not equal to zero. Not तो equal to जब zero. हम बहुत ही छोटे इंटरवल के लिए कोई काम करते हैं, हम बोलते हैं हम इंस्टेंटली कर रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल, आपको मम्मी ने बोला पढ़ने बैठ जाओ और आप इंस्टेंटली बैठ गए, मतलब आप बहुत ही कम टाइम लेने के बाद आपने पढ़ाई करना शुरू कर दिया। सो इंस्टेंटेनियस मतलब बहुत ही छोटे टाइम इंटरवल के बाद। समझ में आ रहा है व्हाट आई एम सेइंग? सो डेल्टा टी टेंड्स टू जीरो, ये सबको क्लियर हुआ? इसका Yes. मतलब Yes. समझो इंटरवल बहुत छोटा है बट जीरो नहीं है। सही है. So instantaneous angular displacement is simply given by d theta equals to delta s upon r, क्योंकि r तो रेडियस है, ये वाली चीज तो उतनी ही रहेगी, सिर्फ Yes. बहुत छोटा बोल रही हूँ, मतलब this s will be very small and theta covered will be very small. So delta theta is equals to delta s by r, या इसको ऐसा भी लिख सकते हो, d theta is equals to ds by r, दोनों तरीके से लिखा जाता है। समझ में आया बच्चों? क्लियर हुआ? बोलो। मैम डेल्टा इज डिनोशन ऑफ इंस्टेंटेनियस। I cannot hear you. मैम फिर से बोलो। डेल्टा को इंस्टेंटेनियस के लिए डिनोट करते हैं। Just to represent that it is very very small, इसीलिए, बाकी कुछ नहीं। ओके वो एक नोटेशन दिया गया है, दे हैव गिवन वन नोटेशन, और डेल्टा यूज करने का मतलब यह है कि चेंज बहुत ही ज्यादा छोटा हो रहा है। मतलब डी और डेल्टा में डिफरेंस क्या है? डी का मतलब है चेंज हो रहा है, छोटा बड़ा सब कंसिडर हो जाता है, बट जब हम डेल्टा लिखते हैं तो हम ये बोलते हैं कि बहुत छोटे चेंज की बात कर रहे हैं हम। सो दैट्स व्हाई इसको स्पेशलाइजेशन क्यों दिया, क्योंकि डेल्टा रिप्रेजेंट्स कि हम बहुत छोटे चेंजेस के बारे में डिस्कशन कर रहे हैं। So it's just a symbol given to understand the things, nothing else. Clear हुआ बच्चों? Yes. 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 ठीक है, मैं वापस से रिपीट कर रही हूँ, ध्यान से सुनो। मैंने क्या क्या कंडीशंस कंसीडर किया है। मैंने कहा एक ऑब्जेक्ट है जो सर्कुलर मोशन परफॉर्म कर रहा है, रिवॉल्यूशन परफॉर्म कर रहा है ऑन द सर्कमफेरेंस ऑफ द सर्कल। उसके बाद मैंने कहा कि ये जो मेरा ऑब्जेक्ट है ये एंटी क्लॉकवाइज सेंस में घूम रहा है, इट इज मूविंग इन एंटी क्लॉकवाइज सेंस। मैंने कहा ओरिजिनल पोजीशन, जो इनिशियल पोजीशन है टाइम t इज इक्वल्स टू 0, जब मैंने एक्सपेरिमेंट शुरू किया, मेरा जो पर्टिकुलर पार्टिकल है वो पोजीशन ए पे है। एक टाइम के बाद उस पार्टिकल ने कुछ एंगल कवर करके वो पॉइंट बी पर आ गया। ये जो एंगल उसने कवर किया है, इसी एंगल को हम एंगुलर डिस्प्लेसमेंट के नाम से जानते हैं। This angle is itself called as angular displacement. अगर आपको किसी ने पूछा कि angular displacement for a particle moving on a circumference of a circle, angular displacement of a particle moving on a circumference of a circle, वहां पर angular displacement 0 नहीं होता, वहां पर angular displacement होता है कितना? 2 pi, that is 360 degree. 360 degree. Degree. पार्टिकल इज मूविंग ऑन अ सर्कमफेरेंस ऑफ अ सर्कल, अगर पार्टिकल सर्कमफेरेंस ऑफ अ सर्कल में मूव कर रहा है और उसने एक रिवॉल्यूशन कंप्लीट किया है, मतलब पार्टिकल यहाँ से शुरू हुआ, मूव होता गया, एक रिवॉल्यूशन कंप्लीट करके वापस वो अपनी इनिशियल पोजीशन पे आ गया। यहाँ पर एंगुलर डिस्प्लेसमेंट इज नॉट 0, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट इज 2 पाई, दैट इज 360 डिग्री। यही चीज हमको यहाँ पर समझनी है, और इसी रीजन से आपका सर्कुलर मोशन लीनियर मोशन से थोड़ा अलग हो जाता है। वहां पर अगर मैं इनिशियल से स्टार्ट करूं और वापस यहाँ से स्टार्ट करूं, यहाँ गई,
वापस रिटर्न बैक अगर अपने ओरिजिनल पोजीशन पे आ गई, ऐसे डिस्प्लेसमेंट इज जीरो। Zero. Zero. करेक्ट है? Yes. Yes. So this is linear displacement. This is linear displacement. Linear But displacement. angular displacement में ऐसा नहीं होता। अगर आपका पार्टिकल एक रिवॉल्यूशन कंप्लीट करके अपने ओरिजिनल पोजीशन पर आता है, वहां पर एंगुलर डिस्प्लेसमेंट इज 2 पाई डिग्री, सॉरी 2 पाई रेडियन और 360 डिग्री। समझ में आया? Yes. Yes. समझा सबको? Okay. Yes, ma'am. So A is the initial position, B is the final position, R is the radius of the circle. इस radius of the circle को radius vector भी बोला जाता है, because radius vector जो होता है वो पार्टिकल के पोजीशन को रिप्रेजेंट करता है। रेडियस और रेडियस वेक्टर में यही डिफरेंस है। रेडियस मतलब कोई भी रेडियस हो सकता है, इट कैन बी एनी रेडियस, बट रेडियस वेक्टर जब आप बोलते हो तो मतलब ये वो पॉइंट होता है जो पार्टिकल के पोजीशन को कनेक्ट करे। अब ये मेरा पूरा एक सर्कल है, राइट? ये पूरा एक सर्कल है, मैं इस पार्टिकल के पोजीशन की बात कर रही हूँ, तो मैं कोई भी रेडियस बोल सकती हूँ ना, दिस एनी दो वैल्यू इज सेम, but radius can be anything. But when I say radius vector, it means that I am talking about a radius which is connecting the position of a particle with the center. वो radius होता है जो पार्टिकल के पोजीशन को इंडिकेट करता है। समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रही हूँ? Yes, ma'am. क्लियर हो रहा है? Yes. Yes. तो radius vector can also be known as position vector, पर ये तभी होगा जब मैं अपने इस सेंटर को क्या कंसीडर करूंगी? Origin. ओरिजिन कंसीडर करूंगी। क्लियर विद द पार्ट? Yes. फिर मैंने कहा कि मेरा पार्टिकल ने आफ्टर टाइम t वो बी पोजीशन पे आ गया है, उतने में उसने जो लेंथ ऑफ आर्क, दिस इज कॉल्ड एज आर्क, उसने जो आर्क कवर किया है दैट इज स्मॉल एस। देन उसके बाद मैंने पढ़ा है मैथमेटिकली कि हमारा जो थीटा होता है वो आर्क लेंथ अपॉन रेडियस होता है। आर्क लेंथ इज एस, रेडियस इज स्मॉल आर, सो थीटा इज इक्वल, एस इज इक्वल्स टू आर इनटू थीटा। नेक्स्ट मैंने आपको बताया कि अगर मैं इंस्टेंटेनियस मतलब फॉर वेरी वेरी स्मॉल इंटरवल ऑफ टाइम, बहुत छोटे टाइम के लिए मैं ये देख रही हूँ, सो व्हेन आई गो फॉर इंस्टेंटेनियस एंगुलर डिस्प्लेसमेंट मतलब मैं बहुत छोटे इंटरवल में डिस्प्लेसमेंट को देखने की कोशिश कर रही हूँ, दैट इज माई डेल्टा टी इज टेंडिंग टू जीरो। प्लीज बच्चों समझो, डेल्टा टी टेंडिंग टू जीरो का मतलब होता है कि टाइम इंटरवल बहुत छोटा है बट जीरो नहीं है। आर यू क्लियर व्हाट आई एम ट्राइंग टू से? Yes. समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रही हूँ? Yes. मैं अगर समझो मेरे को मम्मी ने बोला पढ़ाई करो और मैं तुरंत पढ़ने बैठ गई और किसी ने आके पूछा तू कितने देर, मम्मी के कितने देर बाद बोलने के बाद तू पढ़ने के लिए बैठा, तो योर आंसर शुड बी डेल्टा टी टेंड्स टू जीरो। मतलब टाइम इंटरवल इतना, मम्मी ने जस्ट बोला और मैं पढ़ने बैठ गया, मींस माय इंटरवल इज वेरी 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 स्मॉल, बट इट इज नॉट Zero. 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 अंडरस्टैंडिंग? Yes. Are you understanding what I'm trying to Yes. say? Yes. So here delta t is tending to zero. So time interval छोटा है तो जो displacement देख रहे हैं वो भी बहुत छोटा होगा. So जो angular displacement देख रहे हैं वो भी बहुत छोटा होगा. Delta theta is equals to जो arc cover होगा वो भी बहुत छोटा होगा. Delta s radius तो भाई एक constant value है. It is going to be smaller only. Are you clear till this much? Yes. 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 Okay. Now if I write this in a vector notation form, ये हमारा हो गया सिंपल मैग्नीट्यूड फॉर्म में. अब मैं इसके डायरेक्शन स्पेसिफाई करके लिखने वाली हूँ. वेक्टर नोटेशन फॉर्म का मतलब होता है या वेक्टर फॉर्म का मतलब होता है उनके डायरेक्शंस के फॉर्म में उनको लिखना. लेट्स राइट इट इन द वेक्टर नोटेशन फॉर्म. सो डेल्टा एस इज इक्वल्स टू आर इनटू थीटा. सो इन वेक्टर नोटेशन फॉर्म इट इज रिटन एज delta s bar equals to delta theta cross r bar. Cross product क्यों? Why it is a cross product? Dot product क्यों नहीं लिया? क्योंकि वो डायरेक्शन दिखा रहा है ना. दोनों भी Anyone will मैग्नेटिक. try to explain me why I am taking cross product? दो products होते हैं. वेक्टर क्वांटिटी. One is vector product and one is scalar product. Yes. Why I am taking vector product here? मैम जो लोग 11th मैग्नीट्यूड में होगा. थे वो try करो. Why I am simply taking a vector product here? डेल्टा Why I am पर taking a मैम जो vector product? रिजल्टेंट जो RHS में आ रहा है वो वेक्टर है इधर, इसलिए Yes. ये Dot जो product में हमारा आता है वो आर्क scalar लेंथ आता है ना, ये जो हमारा आर्क लेंथ है ना, ये जो एस है ना हमारा, ये एक्चुअली में हमारा लीनियर डिस्प्लेसमेंट है.
जो हमारा अर्थ लेंथ है, अगर आप इसको बहुत छोटे के लिए देखो, लेट्स टॉक अबाउट योर सरफेस ऑफ द अर्थ। ये आपका सरफेस ऑफ द अर्थ है। अगर आप बहुत छोटा सरफेस ऑफ द अर्थ देखो तो आपको ये क्या दिखता है? व्हाट इट इज? लीनियर दिखता है। Linear Linear. लीनियर दिखता है। लीनियर आपको अपना Yes. आप जब प्लीज मेरे 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 एग्जांपल्स को बहुत ध्यान से सुनो। व्हाट आई एम एक्सप्लेनिंग इज समथिंग वेरी इंपॉर्टेंट। जब आप अर्थ के सरफेस पे खड़े रहते हो, आपको कभी फील हुआ आपका अर्थ जो है वो ओवल है? डू यू एवर फील दैट? नो No. आपके साथ अर्थ बहुत बड़ा है, समझा? तो जब आप छोटे से सेक्शन को सिर्फ देखते हो तो आपको लीनियर दिखता है। Linear दिखता है. यस तो एक्चुअली अगर जब आप छोटे एस की बात कर रहे हो तो आप ये जो आपने एस लिया है, ये जो आपका आर का लेंथ है, ये एक्चुअली आपका लीनियर डिस्प्लेसमेंट है। और डिस्प्लेसमेंट क्या है? व्हाट इज डिस्प्लेसमेंट? स्केलर क्वांटिटी और वेक्टर क्वांटिटी? Vector quantity. वेक्टर क्वांटिटी। क्वांटिटी जब भी रिजल्टेंट हमारा वेक्टर होता है, हम हमेशा क्रॉस प्रोडक्ट लेते हैं। वी ऑलवेज टेक अ क्रॉस प्रोडक्ट। जब हमारा रिजल्टेंट स्केलर होता है, Dot हम product. हमेशा डॉट प्रोडक्ट Dot लेते हैं। product. दैट्स व्हाई इट इज अ क्रॉस प्रोडक्ट। क्लियर? Yes. यस जो लोग 11th में नहीं थे उनको समझा व्हाई आई एम टेकिंग क्रॉस प्रोडक्ट? समझा? यस मैम श्योर एवरीवन? क्रॉस प्रोडक्ट इज अ वेक्टर क्वांटिटी जिसमें देखो डिस्प्लेसमेंट में डायरेक्शन मैटर करता है। मैं स्टार्टिंग में मैंने लीनियर डिस्प्लेसमेंट की बात कर रही हूँ। मैंने स्टार्ट किया मूव करना, मैं 5 मीटर गई, 5 मीटर से जब मैं रिटर्न 3 मीटर पे आई, मेरा लीनियर डिस्प्लेसमेंट कितना रह गया? 2 व्हाट इज द meter. वैल्यू ऑफ लीनियर? 2 मीटर। मतलब डिस्प्लेसमेंट की बात करते वक्त डायरेक्शन मैटर करता है। जिसमें डायरेक्शन मैटर करता है वो वेक्टर क्वांटिटीज होते हैं। सो जब हमारा इक्वल टू के साइन के इस साइड जब हमारा रिजल्ट वेक्टर क्वांटिटी होता है तो उसका वो जिस भी प्रोडक्ट से, वो जिस भी फॉर्मूले से आने वाला होता है, हमेशा उसका क्रॉस प्रोडक्ट लिया जाता है। समझा? देयर आर टू काइंड्स ऑफ प्रोडक्ट, क्रॉस प्रोडक्ट एंड डॉट प्रोडक्ट। क्रॉस प्रोडक्ट वेक्टर क्वांटिटीज, अगर आंसर में वेक्टर क्वांटिटी आ रही है तो मतलब वहां पर क्रॉस प्रोडक्ट रिजल्ट कर रहा है। और आंसर में सिर्फ ऐसी कोई वैल्यू आ रही है जिसमें डायरेक्शन मैटर नहीं करता, दैट इज स्केलर क्वांटिटी, वहां पर डॉट प्रोडक्ट लिया जाता है। आर यू क्लियर एवरीवन? आर यू Yes. क्लियर विद दिस? यस मैम Yes. इज एवरीवन क्लियर? ठीक है? Yes, ma'am. यस मैम I want to know the direction of angular displacement. मुझे एंगल अभी हमने देखा ना, डेल्टा एस बार इक्वल्स टू डेल्टा थीटा बार इनटू आर, ये देखा हमने। यस मुझे लीनियर डिस्प्लेसमेंट से तो कोई मतलब नहीं, मुझे पता है लीनियर डिस्प्लेसमेंट तो यही है, राइट हैंड बट थंब मुझे रूल से एंगुलर डिस्प्लेसमेंट जानना है। Right hand thumb rule. तो आई हैव टू यूज राइट राइट हैंड थंब रूल हैंड Thumb rule. थंब रूल। क्या है समझाती हूँ, रुक जाओ। समझो, ये आपका सर्कल था, ठीक है? ये आपका ऑब्जेक्ट कौन से डायरेक्शन में मूव कर रहा है? Anti-clock. कौन से डायरेक्शन में? Anti-clockwise. Anti-clockwise। आपको सिंपली क्या करना है, जिस डायरेक्शन में मोशन हो रहा है उस डायरेक्शन में अपना रखना है, थंब है, और अपने चारों के चारों फिंगर्स को उसी डायरेक्शन में गोल घुमाना है। मैम ब्रेक हो रहा है। एंगुलर डिस्प्लेसमेंट कौन? स्क्रीन फ्रीज है, स्क्रीन फ्रीज ब्लर भी है। Okay, can you hear me? Yes. यस Yes. Yes. यस मैम एक मिनट रुक जाओ, अभी ठीक है? Yes, Yes. ma'am. ठीक है। यस अंडरस्टैंड राइट हैंड थंब रूल। राइट हैंड थंब रूल कैसे लेता है? ये आपका मोशन जिस भी डायरेक्शन में हो रहा है, आपके 4 फिंगर्स को आपको उस डायरेक्शन में लेना है और उसको क्या करना है, उसी डायरेक्शन में टर्न करना है। आपका थंब का डायरेक्शन आपको एंगुलर वेलोसिटी का डायरेक्शन देगा। किस डायरेक्शन में आ रहा है? किस डायरेक्शन में आ रहा है? आउटसाइड द स्क्रीन अगर क्लॉकवाइज होता तो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट कौन से डायरेक्शन में होता? Inward. डाउनवर्ड, Inwards. इनवर्ड।
Is it clear? Yes. Clear everyone? Yes. So राइट हैंड थंब रूल क्या बोलता है? रूल बोलता है आप अपना राइट हैंड लो, जिस डायरेक्शन में मोशन हो रहा है आपके हाथ को आप उस डायरेक्शन में टर्न करो, और आपका जो थंब है, वो जो आउटस्ट्रेच थंब है, वो आपको एंगुलर डिस्प्लेसमेंट का डायरेक्शन बताकर देगा। क्लियर विद द पार्ट? और हर बार चाहे एंगुलर डिस्प्लेसमेंट हो, एंगुलर वेलोसिटी हो, एंगुलर एक्सेलरेशन हो, हम राइट हैंड थंब रूल का यूज करने वाले हैं इनका डायरेक्शंस निकालने के लिए कि कौन से डायरेक्शन में एंगुलर डिस्प्लेसमेंट या एंगुलर वेलोसिटी या एंगुलर एक्सेलरेशन लाई करता है। आर यू क्लियर विद दिस मच? समझ में आया सबको? Yes. Yes. ठीक है, सो वी विल स्टॉप हियर। जो भी नोट्स है मैं आपको लिख के पीडीएफ फॉर्म में भेज दूंगी। सारे कंसेप्ट क्लियर हुए अभी तक? व्हाट इज एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, व्हाट इज एंगुलर इंस्टेंटेनियस एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, Yes. इसका डायरेक्शन कैसे फाइंड करते हैं, तीनों चीजें क्लियर हुई? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. इन शॉर्ट अगर मैं सिंपल टर्म में बोलूं तो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट इज एक्चुअली द एंगल कवर्ड इन अ सर्कल। जो एंगल कवर होता है सर्कुलर मोशन परफॉर्म करते समय, दैट गिव्स यू द एंगुलर डिस्प्लेसमेंट इन शॉर्ट। समझ में आ रहा है? Yes. क्लियर हो रहा है एवरीवन? Yes. ठीक है, सो विल स्टॉप हियर। बाय एवरीवन, टेक केयर।